आप झूला ऊपर ऊपर और ऊपर, झूला साए साए साए। और जब झूला नीचे आता है तो पेट में कैसा लगता है ना साहब? Who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourself to these unnatural men. देखो, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने किसी को नहीं देखा। किसने मारा, किसको मारा, मैंने नहीं देखा। प्लीज 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 हाथ नहीं लगाना प्लीज 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 हाथ दूर रहो मुझसे, दूर रहो प्लीज प्लीज, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मत मारना प्लीज, मुझे मत मारो मुझे मत मारो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा किसी से। मैं गूंगा हूँ। And the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of soul. Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of creed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourself to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You're not machines, you're not cattle, you're men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man. Not one man, not a group of men, but in all men. In you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power. No sir, this is my final chance sir. This is my last chance. मेरे सामने एक मशहूर डायरेक्टर बैठे हुए हैं और आज अपने आप को इस पिस्टल से गोली मारकर अपने छोटे से नाम को आपके बड़े से नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ जाऊंगा सर। कल अखबार में खबर आएगी कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने एक मशहूर डायरेक्टर के सामने अपने आप को गोली मारी। एक्टर का नाम रेहान भट्ट। रेहान भट्ट। कल तो मुझे शोहरत मिल जाएगी सर। हाँ, कल मुझे शोहरत मिल जाएगी। और आज शाम को लोग मेरी बातें करेंगे सर। चाय पीते हुए घर में बातें करेंगे कि पता नहीं क्या हो गया होगा जो उस लड़के ने ऐसा कदम उठा लिया। मगर एक बात है सर, लोग मुझे याद करके रोएंगे जरूर। मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे किस्सों को याद करके, मेरी बातों को याद करके, मुझे याद करके वो सब रोएंगे जरूर सर, रोएंगे जरूर। और ये सब इसलिए कि जीते जी मैं शोहरत हासिल ना कर पाया, शोहरत हासिल नहीं कर पाया। अलविदा सर, अलविदा। ये वर्दी मेरी राष्ट्र सम्मान है। राष्ट्रीय सम्मान? ये वर्दी और ये ट्रायल,
ये सब इसलिए नहीं कि राष्ट्र है, ये सब इसलिए है कि राष्ट्रवाद भी है। बहुत बहुत बचाया है सर इस ब्लडी डेमोक्रेसी ने आपको, वरना कहीं उल्टे टंगे होते बीच चौराहे पर। क्या कहा था आपने? नसों में जहर, कौम को खत्म कर देना, राइट? खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उस कौम को जिसने महात्मा गांधी को मारा, खत्म कर दीजिए उस कौम को जिसने मार्टिन लूथर किंग को भी मारा। गो अहेड, किल देम ऑल, फिनिश देम ऑल। दैट्स योर सॉल्यूशन, राइट? लेकिन इसका सॉल्यूशन है एक 6 साल की बच्ची की जान बचाना। दैट्स इट। कोई कौम नहीं, कोई जात नहीं। सर, जावेद खान की इंसानियत में पूरी इंडियन आर्मी का शौर्य छुपा है। यू वोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझेंगे। टेक हिम अवे। They say I am the most best and the most best actor of the town. Yes, I know I am. The one is not the one. What do you think? I am the most disgusting fool you have ever seen. Why are you laughing? Why the fuck are you laughing? I know I am a fool. I know I am a fool. But why am I laughing? Why am I laughing? I'm not a fool. I'm not a fucking fool. I am a fool. Are you making fun of me? Are you making? I was waiting to be loved. I was sweet little girl who was waiting to be loved, and you are not loving me. But yeah, I am a fucking joke. I am a fucking joke. I am the head of Nazi government. I am Hitler. This is the most important country in the world. I am loving it. Yes, this is the most important country in the world. It's all the thing. I am loving it. वो दूर घाट में बस्ती देख रहे हो साहब, मेरा घर था। मेरा बाप वहां चाय के बगान में काम किया करता था साहब। बड़ा ही हंसमुख इंसान था, बड़ा ही मददगार। वर्कर लोग सब उसकी इज्जत किया करते थे। फैक्ट्री का यूनियन लीडर जो था, मुझे मेरे बाप से बहुत प्यार मिला साहब। वो पेड़ देख रहे हो साहब, उस पे मोटी रस्सी का झूला, मेरा बाप वहां ले जाके जोर जोर से पींगे दिया करता था साहब। झूला ऊपर ऊपर और ऊपर, झूला साए साए साए। और जब झूला नीचे आता तो पेट में कैसा लगता है ना साहब। कमाल के दिन थे साहब, बड़े ही प्यारे दिन थे। फिर एक दिन पुलिस आई और मेरे बाप को उठाकर लेकर चले गए साहब। और तो और मेरी माँ भी मेरे को छोड़कर चली गई साहब। कितना सा था मैं, ये इतना सा। चली गई साहब। रोता रहा, बिलकता रहा, चिल्लाता रहा। मजाल है किसी ने एक गिलास पानी तक पूछा हो? कोई नहीं आता साहब, कोई किसी का नहीं होता। रोता रहा, बिलकता रहा। रात हो गई साहब। रात हुई तो भूख लगी, और जब भूख लगती है तो ऐसा लगता है कोई जानवर आपके पेट में बैठ के अपने नाखूनों और दांतों से अंदर से नोच रहा हो साहब। आदमी पागल हो जाता है। तभी देखा मैं कैसे उसी पेड़ के नीचे बैठ के कुत्ता रोटी का टुकड़ा चबा रहा है, चबड़ चबड़ चबड़। मुझे गुस्सा आया, पत्थर उठा के दे मारा। कुत्ता आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, और उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिरा और मैं खा गया साहब। मैं वो रात मैं ये रोटी खाया, तब से लगता है किसी ने जमीन आसमान के बीच में फर्क लिख दिया कि मुन्ना, जीना है तो मारना सीख, छीनना सीख। ऐसा लगता है साहब, ऐसा लगता है।
देखो अपने चारों तरफ, पियोन्स, क्लर्क्स, ऑफिसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिल्डर्स, इंजीनियर्स, एमपी, एनजीओ, मीडिया, आर्टिस्ट, खिलाड़ी, सब लोग करप्ट हो चुके हैं। कोई डिपार्टमेंट बचा ही नहीं है। और अगर कोई करप्ट नहीं हुआ है तो वो है एक ऐसा आदमी, एक ऐसा गरीब आदमी जिसे करप्ट होने का मौका नहीं मिला। ये देश है हमारा, ये आजादी है हमारी, और मेरी लड़ाई इसी सोच के खिलाफ है। यही मुसीबत है भारत की। गरीबी हटाओ का मतलब है कुछ लोगों को और अमीर बनाओ। लीडर्स राइट करवाते हैं, एक वोट्स के लिए मस्जिद बनवाता है तो दूसरा वोट्स के लिए मंदिर तोड़ता है। किसका पैसा लग रहा है इन सब में? मेरा, आपका, एक गरीब भारतवासी का। ये इनक्रेडिबल इंडिया की चमक के पीछे एक सिविल वॉर की खुशबू नहीं आती? 40% of India is under military control. Bloody war is on. It's a war. Capital state versus its own hungry, deprived people. It's a war. क्रांति जवाब है इसका, केवल क्रांति। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। It's a new world war. ये दो देशों के बीच नहीं है, ये पावर के लिए भी नहीं है, ये आजादी के लिए भी नहीं है। इट्स अ वॉर बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। से यस टू रेवोल्यूशन। कल तू जीतेगी तो तू अकेली ना जीतेगी, तेरे साथ साथ उन जैसी लाखों छोरियां जीतेगी। हर वो छोरी जीतेगी जिन्हें छोरों से कम समझा गया है, जिन्हें चूल्हे चौके में झोंका गया है और बच्चे पालने खातिर ब्याया गया है। कल का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला है बेटा, क्योंकि कल तू सिर्फ उस ऑस्ट्रेलियन से ना लड़ेगी, बल्कि उन सब से लड़ेगी जिन्होंने छोरियों के बारे में ऐसा सोचा है। Subscribe to the Rock India YouTube channel and click on the bell icon to get regular updates.